Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to do question answer of chapter 4, science chapter 4, acids, bases and salts. So let's be started. In previous video we have already completed question answer of part A, B, C and D. In this video we are going to do part E, answer the following question. So let's be started. Question number 1. All alkyls are bases, but all bases are not alkalis. Justifies this statement? Answer is all bases are not soluble in water. Bases which are soluble in water are called alkalis. For example, sodium hydroxide is a basis soluble in water and termed as an alkalis, while aluminum hydroxide is insoluble in water and turns as a basis, not as an alkalis. Hence, all bases are not alkalis, while all alkalis are bases. Now, next question, question number 2. Suggest an activities that can help one to decide whether a given solution is acidic or basic in nature. Answer is we take given solution in a container and dip a red litmus paper in the solution. If the color of litmus paper changes to blue, this solution is a basic in nature. Otherwise, the given solution is basic. It is acidic. Now, question number 3. Write chemical equation for the following reaction. Number A. Calcium hydroxide react with nitric acid. तो इसमें कैसे रिएक्शन होगा आपको दिखाया गया है. तो इस तरह से जो केमिकल रिएक्शन है आपको पहले लर्न करना होगा. उसके बाद यहाँ मैंने सबके आंसर्स को लिख दिया है. नंबर 2. एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ वाटर हाइड्रोक्साइड. ओके. Now number 3. Hydrochloric acid react with the sodium hydroxide. The number D. Aluminum hydroxide react with सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये आपका रिएक्शन यहाँ दिखाना है. तो रिएक्शन मैंने प्रूव करके दिखा दिया है. क्वेश्चन नंबर 4. स्टेट द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल एसिडिक एंड बेसिक साल्ट्स. गिवन वन एग्जांपल ऑफ ईच. फर्स्ट, neutral salt. Neutral salt formed after reaction between strong acid and strong bases. Example, sodium chloride. Next, acidic salt. Acidic salt formed after reaction between strong acid and weak bases. Example, ammonium sulfate. Now next, basic salts. Basic salt formed after reaction between weak acid and strong bases. For example, sodium acids. Now next, question number 5. Describe an activities to show that solution of salt in water can conduct electricity. Answer is take a beaker and fill it half with water. Dissolve some common salt in the water. Connect two graphite rods with the two terminals of battery with 0-watt LED bulb in between as shown in the figure. Now dip these graphite rods in the solution of sodium chloride. The bulbs start glowing, indicating the flow of electric current. This so that the solution of sodium chloride can conduct electricity. तो ये जो नीचे आपको पिक्चर दिया है ये इससे कैसे हो रहा है ये आपको दिखाया गया है कि इस पिक्चर के थ्रू ग्रेफाइट के जो है रॉड्स को इसमें सोल्यूबल वाटर में जब डिज़ोल्व किया गया है तो किस तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व कर रहा है
इंडिकेट कर रहा है, ग्लो कर रहा, ये आपको दिखाया गया, जिससे कि बल्ब लाइट जो है, एलईडी बल्ब जो है वो आपको जलने लग रहा। तो ये आपको दिया गया है, ये ऑलरेडी आपके बुक में भी दिया गया है, बुक में भी इस एग्ज़ाम्पल को दिखाया गया है। तो इस तरह से आप इसे शो कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके बुक में दिया गया है, तो आप इसे पहले तो केयरफुली से पहले रीड करोगे, उसके बाद आपको समझ सकोगे। द फिजिकल ट्रेनिंग टीचर नोटिस दैट टू ऑफ आवर स्टूडेंट वेयर हैविंग वेरी हेटेड आर्ग्यूमेंट विद ईच अदर। तो इसमें क्या बताया गया है कि फिज़िकल ट्रेनिंग टीचर जो है वो नोटिस करती है कि जो स्टूडेंट जो है, उनके स्टूडेंट वो क्या है, बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं आपस में, मतलब बहुत गलत तरीके से आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। सी इमीडिएटली वेंट टू देम, क्लैम्प्ड देम डाउन एंड मेड देम सिट टुगेदर। तो उसके बाद वो जो फिज़िकल ट्रेनिंग टीचर है वो क्या करती है, सडनली वहाँ पे इमीडिएटली वहाँ पहुँचती है और उसे क्या करती है कि एक साथ साइड करके उसे बैठाती है। सी लिसन्ड पेशेंटली टू बोथ ऑफ देम एंड देन एक्सप्लेन्ड टू देम द मेरिट्स ऑफ द अदर पॉइंट ऑफ व्यू एंड the importance to teamwork. The student agreed to follow her advice and instruction. तो उसके बाद क्या है, वो जो आप फिज़िकल टीचर है, ट्रेनिंग टीचर, वो क्या समझाती है, सबसे पहले तो उसे समझाती है कि दोनों के सेंस जो पॉइंट ऑफ व्यू को समझना पड़ेगा, दोनों के इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। मतलब आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हो, इसमें दोनों की ही व्यू को पहले आपस में देखो, तुम उसके व्यू को देखो, देन तुम आप उसके व्यू को देखो। उसके बाद क्या समझाती है टीचर कि ये टीम वर्क, जो ग्रुप वर्किंग होता है, मैंने एक साथ जो बहुत सारे बच्चे ग्रुप में बैठ के कोई भी वर्क करते हैं, तो टीम वर्क के बारे में समझाती है और बताती है इम्पॉर्टेंस, टीम वर्क का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में फिज़िकल टीचर जो है वो स्टूडेंट को समझाती है। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट जो है एग्री हो जाते हैं और उसे उसके एडवाइस को, इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे टीचर जो फिज़िकल टीचर है वो उन्हें जो जो समझाती है, टीम वर्क, देन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखना, ये सारी बातों को वे समझते हैं, एग्री होते हैं और उसे उसके एडवाइस को, देन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। द केमिस्ट्री टीचर हु वॉज वॉचिंग ऑल दिस remarked that she see a lot of similarity between the role of the PD teacher and the neutralization reaction between acid and bases। तो वहीं सामने जो बैठी है केमिस्ट्री टीचर जो है वो इन सारी चीज़ों को देखती है कि कैसे जो फिज़िकल ट्रेनिंग टीचर है, देन वो जो टू स्टूडेंट आपस में आर्ग्यूमेंट करते हैं इन, और कैसे वो फिज़िकल टीचर जो है उन्हें समझाती है, देन उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने बैठी केमिस्ट्री टीचर जो है वो इस सब को देखती है और तब वो केमिस्ट्री टीचर जो है वो रिएक्ट करती है, रिमार्क करती है कि किस तरह से पीटी टीचर जो है, देन स्टूडेंट, इन दोनों में, देन न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है, इन दोनों में कैसे सिमिलैरिटी है। ये टीचर देन स्टूडेंट, फिजिकल टीचर ट्रेनिंग टीचर जो है, देन आर्ग्यूमेंट करते हुए जो दो स्टूडेंट रहते हैं, इन दोनों के बीच देन आपको जो ये न्यूट्रलाइजेशन जो है रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और ये बच्चों और टीचर में, इन दोनों में किस तरह की सिमिलैरिटी है। जैसे एसिड एंड बेसिस, एसिड एंड बेसिस जो है दोनों अदर रहने के बाद भी जब इनके बीच रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि ये दोनों ही अपनी जो इनकी जो कॉमन है, कॉमन जो इनका स्टेप है या फिर कॉमन जो इनका है, वो सारा कुछ चेंज हो जाता है रिएक्शन के बाद। कैसे? तो ये जो रिएक्शन होता है उसमें एसिड जो है, एसिड का सारा जो दोनों में भी जो कॉमन है वो सारा क्या होता है, रिएक्शन के बाद वो सारा कुछ चेंज हो जाता है।
ठीक है। जैसे एसिड जिसमें जो रहता है उसका जो सब्सटेंस है, देन जिसका क्वालिटी जो रहता है, देन एसिड्स, देन बेसिस का जो क्वालिटीज़ रहता है, वो दोनों ही रिएक्शन के बाद वो क्या होता है, टर्न हो जाते हैं। दोनों ही उसके अपने जो वैल्यू है, अपनी जो क्वालिटी है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये रिएक्शन के बाद। तो ये सब जो केमिस्ट्री टीचर है ये सारा कुछ एब्जॉर्ब करती है कि कैसे दोनों जब साथ में रिएक्शन करता है एसिड्स एंड बेसिस, तो ये अपने अपने गुणों को अपना ख़त्म कर देते थे, नया एक जो है रूल फॉलो कर लेते हैं। तो ये सारा कुछ यही जो है वो स्टूडेंट देन टीचर्स, टीचर के समझाने के बाद उन दोनों जो स्टूडेंट के बीच रिएक्शन होता है वो भी चेंज कैसे होता है, ये सारा कुछ एब्जॉर्ब करते रहती है। तो ये सारा कुछ ये लिखा है, ये पैराग्राफ राइटिंग में इसमें लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस पॉइंट्स को आपको अच्छे से समझ लेना है। देन नेक्स्ट आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट द वैल्यूज़ डिस्प्लेड बाय द टीचर, पीटी टीचर। तो इसमें पूछा जा रहा है आपको कि वैल्यू बेस्ड टीचर जो है उसके वैल्यूज़ डिस्प्ले होता है कि कैसे उस टीचर का, पीटी टीचर जो रहती है उसका वैल्यू डिस्प्लेस्ड कैसे होता है, उसके बारे में आपको बताना है कि वो क्या शो करती है, उसका जो रिएक्शन है, उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या डिस्प्ले आपको क्या दर्शाती है। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो कि शी इज़ अ गुड लिसनर, देन गुड स्ट्रक्चर, देन कंसर्टेड। इट मीन्स आपको क्या है, वो सबसे पहले तो दोनों की बातों को ध्यान से सुनती है, समझती है। देन गुड स्ट्रक्चर है, जो सही तरीके से उसे समझाने का प्रयास करती है, और उसके लिए वो उसे समझाती नहीं है बल्कि शो ऑफ करती है। जैसे वे दोनों जब आपस में हीटेड आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं तो उसके लिए क्या करती है, उन्हें बाहर लाती है, समझाती है, और उसके बाद क्या करती है, दोनों को एक साथ बैठाती है। ठीक है। तो ये सारा उसके किस एक्टिविटीज़ को दिखाती है, उसकी उसका क्या दिखाती है उस टीचर के बारे में। तो सबसे पहले कि वो गुड लिसन है, देन गुड स्ट्रक्चर है, ताकि वो पहले तो अच्छे से ध्यान से बातों को सुनती है, समझती है। देन क्या है, उसके बाद क्या उसे रिएक्ट करना है, क्या एक्शन लेना है, वो उसे समझाने का प्रयास करती है इस तरीके से, ताकि बच्चे हर्ट भी फील नहीं हो बच्चों में, और वे अपनी सही जो एडवाइस से वे सही तरीके से उसे की बातों को समझ सके। तो ये जो क्वालिटी है वो टीचर की दिखती है कि वो गुड लिसनर है, ध्यान से सुनने वाली और अच्छे तरीके से समझाने वाली है। देन क्वेश्चन नंबर 2, डू यू एग्री विद द रिमार्क ऑफ द केमिस्ट्री टीचर्स, गिव रीज़न। तो आप कैसे एग्री हो कि जो केमिस्ट्री टीचर है, डू यू एग्री विद द रिमार्क ऑफ केमिस्ट्री टीचर, केमिस्ट्री टीचर जो रिमार्क देती है कि ये दोनों का जो क्वालिटी है वो कैसा है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह है। कैसे, तो आप देखो, आप एग्री हो तो सबसे पहले तो आप लिखोगे यस आई विल एग्री विद द रिमार्क ऑफ केमिस्ट्री टीचर। रीज़न आपको बताना है, तो रीज़न के क्या दोगे कि जिस तरीके से एसिड एंड बेसिस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, दोनों ही अपनी क्वालिटी को, अपनी सारी जो कॉमन इक्वलिटी है उसे वो चेंज हो जाता है उनमें। कैसे चेंज हो जाता है कि ये रिएक्शन जो होता है उस बेसिस में उनके सारे जो उनकी कॉमन है, उनकी जो अपनी क्वालिटी है वो सारा जो है ख़त्म होकर एक नई क्वालिटी आ जाती है, उसमें नए रूप में वो जो है चेंज हो जाते हैं उनकी क्वालिटी। तो ये यही होता है उन बच्चों के साथ कि जब वे एक साथ बैठते हैं आपस में, और तब जो वो आपस में उन टीचर के द्वारा समझाए हुए बात को फॉलो करते हैं, तो उनकी भी क्वालिटी जो एक टाइम में हीटेड आर्ग्यूमेंट कर रहे थे वे अभी आपस में बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं। तो ये रीज़न था कि केमिस्ट्री टीचर जो है एक इस तरीके से समझती है कि जिस तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड एंड बेसिस दोनों के अपने कॉमन क्वालिटी गुण को हटा ख़त्म करके दूसरी क्वालिटी को फॉलो करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, write the chemical equation for two neutralization reaction, given name of all the component relevant to the reaction। तो इसमें क्या लिखना होगा आपको, तो इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि केमिकल इक्वेशन जो टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में
गिवन नेम एंड ऑल कंपोनेंट्स रिलेवेंट जो रिएक्शन, इस रिलेवेंस को कैसे शो करिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना है। तो इसके लिए NaOH प्लस HCl जो है वो रिएक्ट होके क्या हो जाता है, NaCl प्लस H2O। तो NaOH इट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेसिस है, ओके। देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो है एक एसिड है। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो है वो बेसिस है। ये दोनों जो आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, NaCl इट मीन्स सोडियम क्लोराइड, ओके, जो एक ही एक सॉल्ट। देन H2O इट मीन्स वाटर। ये दोनों आपस में रिएक्ट करने के बाद दोनों का क्वालिटी चेंज हो गया। कैसे, एक जो है सोडियम क्लोराइड हो गया, देन एक वाटर हो गया, जो कि इसका क्वालिटी क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों रिएक्ट करके दोनों का ही क्वालिटी चेंज हो गया, ठीक है। जो बेसिस एंड एसिड थे वो चेंज होके क्या हो गए, साल्ट एंड वाटर। तो इसी तरीके से ये जो एक्टिविटीज़ आपको बताया गया है, ये जो आपको एक स्टोरी के रूप में यहाँ पे पैराग्राफ राइटिंग दिया गया है, ये सारे इस रिएक्शन को फॉलो करते हैं, इसे आपको इंडिकेट करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बेसिस एंड एसिड है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या चेंज हो जाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। तो दोनों ही अपनी जो कॉमन क्वालिटी है, इनके जो गुण है वो दोनों ही चेंज होके दूसरी रूप में आ जाते हैं। यही होता है उन बच्चों के साथ। तो इस तरह से ये चीज़ जो है केमिस्ट्री टीचर अपने एक केमिस्ट्री फॉर्म में से इस तरह से समझती है। होप सो आप ये सारे जो पैराग्राफ जो स्टोरी दी गई है इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। और ये जो है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इट मीन्स आपको ये कॉमन यूज़ के, जैसे ये बच्चों की जो आर्ग्यूमेंट की थी, आर्ग्यूमेंट जो था हीटेड आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, ये कॉमनली होता है। तो ये कॉमन चीज़ जो है ये साइंस से रिलेवेंट करके, मतलब केमिस्ट्री फॉर्म में रिलेवेंट करके आपको सॉल्व किया गया है, आपको इंडिकेट किया गया है कि इस तरह से जैसे क्वालिटी इस तरह से चेंज होती है। यही आपको नॉर्मल मतलब कॉमन लाइफ में भी ऐसा होता है, लेकिन ये कॉमन लाइफ में इस तरह से होता है, देन ये केमिस्ट्री फील्ड में या फिर साइंस टर्म में इस तरह से रिएक्ट होके चेंजिंग आता है। तो होप सो दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।